Good morning, all of you. Good morning, all of you. A very good morning, ma'am. How are you? I'm fine. How are the Diwali preparations going on? Ma'am, you did shopping or not? Shopping, but little bit, not too much. What about you all? Ma'am, I thought didn't it. Mom, dad did it for me as Corona is there, so they only went. Okay. So, be safe, huh? Ma'am, today Enjoy. we'll play Kahoot. Today we'll play Kahoot. No, today no Kahoot. Ma'am, you told. Ma'am, you Okay, told today is let the Wednesday. Diwali finish. Let the Diwali finish because today I will finish. Ma'am, this is cheating. Not cheating, Good but daily I'm morning, playing. ma'am. Daily I'm playing now. Daily before this, somebody Good told me morning, ma'am. Yes, good morning, beta. Chemical effects of electric current. Let me finish. Then I will. But Diwali, I will Ma'am, please count. not today, beta. I think my class is on Wednesday. Today you Next will teach Wednesday. chemical effects of electric current, na? Yes, we will complete that. Then only we will move to Kahoot. Otherwise, we will not. Okay, because some people are having saying that now we are not completed, we are not attended like that. So I can't leave them. Okay. So before starting something related to Corona, you all have to see that since Diwali is there. Okay. So you have it is written in Hindi and what it is, some in English. So you can see that this Corona से बच्चे 3 मास्क लगाना है, हाथ पैर धोना है, दूर दूर रहना है, on that maintain social distancing. So festivals are there and all of you will be going to market and buying crackers and all, and I know that. So please maintain. Ma'am, Ma'am, this is ma'am, of our school. Yes, this is of our school only. Okay. ma'am, I was telling that. Ma'am, see everybody. Ma'am, some people even don't know how to cuff even while giving them warnings. Like cuff in your arms, not on your hands. Yes, So, ma'am, that's if this is the case, so ma'am, they should go to kindergarten and read their books of good manners. it is not good manners. It is called as etiquettes, sneezing etiquettes. Yes. So this is the thing that you have to do, and even Ma'am, it's school board's display. yes, okay. This is all the thing which you have to do for Corona. Ma'am, but most of the people are burning cracker, it seems. Yes, I can see that market here, and also I can see hear the sound also. Boom, boom sound, and also it's coming too much. Not even Diwali started before that, only sound is coming. Okay, so this is all. Yes, ma'am. So this was all about your what Corona, and so few people also maintain social distancing when you go to the market, because definitely you are going to go to the market. Okay, so don't do that and stay away from little bit distance. Maintain if you are seeing any person suffering from cold and cough. They should maintain, but you should. Okay, so in the last class we have started this what chemical effects of electric current now, and in that electrolysis I think was started. Yes, electrolysis was started. Okay, so what was electrolysis? Ma'am, it was completed. Electrolysis was completed. Yes, ma'am. Okay, Ma'am, what's electrolysis? Yes, Please ma'am. revise. Yes, ma'am. Yes, ma'am. electrolysis again. Ma'am, please revise. Okay, electrolysis. What is electrolysis? Electrolysis is a process where you are taking the solution of a compound. A compound can be a salt, or you can take the molten form of any element. Acid or base? You can take acid or base also. You can take water also, and you can take the molten. Molten means pigla hua.
पिघला हुआ form. Okay, you can also take the molten form of any element and then you can do the electrolysis. Okay, so you can do the electrolysis of this liquid, either aqueous solution, or you can take the molten form, or you can also take the acid or base or water, simple water electrolysis also you can do. And what is happening in this process, that particular substance will split into its ions. Okay, that particular substance will get split into ions by passage of electricity. अब ये सारे process में एक ही चीज common होगा, you will supply electricity and it will split into charged particles, and that is what electrolysis. अब water में भी pass करोगे electricity. Ma'am, Yes. ma'am, it is written that the fact in which components of a compound get split. So, ma'am, we can also tell breakdown. We can also say no. Yes. And breakdown means, ma'am, decomposition. So, can we write the fact in which components of a compound get decomposed due to No, passing an electric decomposed is a current? different thing. Decomposed means sadhana also. Here it is not. Yes, स्प्लिट या ma'am. स्प्लिट और डिकम्पोज में बड़ा फर्क है. स्प्लिट यानी बिखरना, डिकम्पोज यानी आप बोल रहे हो डिकम्पोज वर्ड इफ यू आर यूजिंग. ब्रेक डाउन यू कैन यूज, क्योंकि ब्रेक डाउन और स्प्लिट मीनिंग एक ही है, टूटना. ओके, एंड टूट के बिखर जाना, दैट इज ओनली स्प्लिट एंड ब्रेक डाउन. बट डिकम्पोज मीन्स इट इज टोटली गेटिंग डिग्रेडेड, दैट इज यू आर सेइंग, दैट इज नॉट करेक्ट वर्ड. ओके, सो इट इज, Okay. so this is either you can write split or you can also write breakdown. Okay, so here in this particular electrolysis process, after passing of electricity, the common thing which is happening in all the substances which I counted, whether it is acid, whether it is base, or it is water, or it is some, who is that? Molten form. Okay, or you have to Chaitanya. please maintain that etiquette. It's not good to do like this in front of all. Okay. Molten form, and when you will supply the electricity, it will split down into charged particles. And the major components which are there required for this electrolysis process is what? First main thing, that is electrolyte solution. इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मींस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिस सोल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है. तो सबसे मेन चीज वही चाहिए हमको. सेकंड थिंग विच यू आर रिक्वायरिंग इज व्हाट? द electrodes. Electrodes means the positive and negative terminals of any battery or cell we are creating. That is only what here in the electrolysis. In the electrolysis also you are requiring what? Two terminals, that is positive and negative terminals, that is cathode and anode. Cathode negative terminal, anode positive terminal. And also you will require a source of electricity, that is battery. आप एक source of electricity आपको लगेगा, that is battery. ओके, ये एक मेन कंपोनेंट है किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस का. हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दे रही हूँ. घर में जो हम सेल यूज करते हैं ना, दैट इट इज इन द टॉर्च एंड ऑल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, याद रखना. इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, बी क्लियर ऑफ दैट. वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है. ओके, in this first we will see what is an electrode. Okay, so what is an electrode? Electrode is a what? It is a what is the electrode is connected to battery. Electrode is, Ma'am, we have done this slide. huh? Somebody asked me to reteach it, that's why I'm explaining it. Okay, ma'am. Okay. Okay. So this electrode is connected to battery. So what is the function of the battery? To supply energy. Supply energy through what? वो तो हवा से तो पास नहीं करेगा, वो किससे पास करेगा? इलेक्ट्रोड से. तो इलेक्ट्रोड का काम क्या हुआ? इलेक्ट्रोड is a conductor of electricity that will carry electricity to any of the poor conductors. पुअर कंडक्टर्स कौन हुआ? चाहे वो अच्छा कंडक्टर हो, चाहे पुअर कंडक्टर हो, या एवरेज कंडक्टर हो, उनके पास लेके जाएगा कौन? ये इलेक्ट्रोड. ओके, and what is a electrolyte? The conducting solution or the molten form of any substance. The solution which is going to conduct the electricity, that is called as electrolyte. Okay, and what is anode and cathode? Electrode ही दो types के होते हैं, anode और cathode. मैंने अभी आपको बताया था. Anode is positively charged terminal and cathode is negatively charged terminal. Okay, so that is anode and cathode. और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद you will get two types of charged particle, positively charged and negatively charged. Here the green ones, light green ones are negatively charged particle. They are called as anions. Anions. Okay, and the positively charged particles are called as cations.
Okay, cations. So these are what? Positively charged particles. So when you do the electrolysis part, then two types of charged particles are released, positive and negative. The positive is called as cation and the negative is called as anion. Okay, this was all about electrolysis. क्या arrangement होता है, setup होता है. Now what we have to concentrate is on the application of electrolysis. Okay, before moving to the application of electrolysis, effect of electric current, we know that what effects electricity can create. Electricity can create heating effect, as we can see in the induction or the iron, even the laptop which you are using. आप कंटिन्यूसली जब लैपटॉप को यूज करते हो तो गर्म हो जाएगा. तो क्यों गर्म होता है? क्यों? इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. मैकेनिकल इफेक्ट, when we are using the electricity, it can also produce mechanical effect. That's why the fan is working, isn't that? Then magnetic effect, electric current gives rise to magnetic effect. Magnetic, हम electricity use करके electromagnet बनाते हैं. That is the best example of what? Magnetic effect. Okay, chemical effect. Ma'am, Yes. ma'am, can you explain mechanical effect again? Okay. अच्छा, कोई भी एनर्जी पास होगी तो वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. तो पहला, हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ही. वो आपका मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि वो किससे रिलेटेड रहता है? फैन के अंदर मोटर रहता है ना. मोटर को रोटेट करता है तो मैं क्या प्रोड्यूस करेगा? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. वो मैकेनिकल एनर्जी लगेगा तभी तो फैन रोटेट करेगा. That means electricity can produce mechanical energy. Okay, and that is called as mechanical effect. हमारा फैन है, सीलिंग फैन है, इवन जब कुछ अप्लायंसेस रहते हैं जिसके अंदर ना फैन टाइप का रोटेट करता है ना. जैसे कि आप इंडक्शन के अंदर देख लो, इंडक्शन को किचन में एक आता है ना इंडक्शन, दैट उसके पीछे भी फैन टाइप का लगा रहता है. जब तक जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ करोगे उसका घूमने का आवाज आता रहता है. ओके, सो आपका किचन में एग्जॉस्ट फैन रहता है, वो है ना. इवन ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेनिंग दैट दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? मैकेनिकल इफेक्ट. क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जाएगा वो किससे कनेक्ट रहता है? मोटर से कनेक्ट रहता है. वो मोटर रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने से आपका फैन भी रोटेट कर रहा है. वो मोटर रोटेट ही इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. अगर इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिकल इफेक्ट नहीं होता तो फैन के अंदर का मोटर मूव नहीं करता, और अगर फैन के अंदर का मोटर मूव नहीं करेगा तो आपका फैन नहीं चलेगा. ओके, इज इट क्लियर? And chemical effect means in chemical effects we are having the electrolysis. Okay, so in chemical effect we are having what? Electrolysis and electroplating. Mainly the best example of chemical effect of electric current is what? इलेक्ट्रोलाइसिस. उसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में अब वो चार्ज में स्प्लिट अप हो रहा है और रिएक्शन चालू हो जाता है. तो ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद रिएक्शन चालू हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? केमिकल इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं. सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट. ओके, एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इज इट क्लियर? ओके, अब हमारा मेन फोकस जो किसमें होना चाहिए? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ पे क्लास चालू करना था मेन. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जो था वो क्या? इलेक्ट्रिक, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट वाज हैपनिंग? इट इज ब्रेकिंग अप इनटू और इज स्प्लिटिंग अप इनटू आयंस. ओके, एंड ये रिएक्शन कब चल रहा है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या शो कर रहा है? केमिकल इफेक्ट शो कर रहा है. अब ये केमिकल इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से केमिकल इफेक्ट निकल रहा है, ये हमको पता कैसे चलता है? ये कैसे पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से केमिकल इफेक्ट मिलता है? तो ये दिए हमको पता चलता है ये तीन जो पॉइंट्स लिखे हैं उनके जरिए. दिस आर द सिम्टम्स व्हिच आर टेलिंग दैट these three can tell that electricity is showing chemical effect. Like first thing, मेटालिक डिपॉजिट्स ऑन इलेक्ट्रोड. अगर आप किसी मेटल का मोल्टन फॉर्म ले रहे हो और इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो केमिकल इफेक्ट कैसे पता चलेगा? आपको किसी एक इलेक्ट्रोड में मेटल का डिपॉजिशन मिलेगा, यानी कि वहां पे केमिकल इफेक्ट विजिबल है. अगर आप किसी सॉल्ट सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो आपको चेंज इन कलर के जरिए पता चल जाता है कि वहां केमिकल इफेक्ट हो रहा है. या फिर उसी सॉल्ट सोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान आपको किसी एक इलेक्ट्रोड पे गैस का रिलीज मिलेगा तो भी पता चल जाता है कि क्या है,
इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है या फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज going on there. So all these three are telling whether the given what these three things are telling that given solution is showing electrolysis process and electricity is showing its chemical effect. Okay, what happened, Naman? Ma'am means change means one change only happens or more than one? Yeah, you can say more than one. जैसे आप सॉल्ट सोल्यूशन का करा रहे हो ना, जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, या फिर आप कॉपर सल्फेट ले लो, तो वहां पे आपको चेंज इन कलर भी दिखता है और आपको हाइड्रोजन गैस जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, वो डिपेंड करता है। अगर आप कलर सोल्यूशन ले रहे हो तो ही आपको कलर में विजिबिलिटी मिलेगी, चेंज इन विजिबल मिलेगा। अदरवाइज ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ले रहे हो तो आपको चेंज इन कलर नहीं मिलेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, चेंज इन कलर नहीं मिलेगा। चेंज कलर कलर्ड सॉल्ट है और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो ही चेंज कलर चेंज का कोई मतलब, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। रिलीज ऑफ गैस तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में आपका गैस का रिलीज होता है। जैसे कि अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज, सॉरी सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से Ma'am, क्लोरीन गैस। यस if gas is releasing, so bubbles will also form. यस, तभी तो पता चलता है कि गैस को या तो कलेक्ट करना पड़ता है या फिर हम एक अरेंजमेंट करते हैं, पाइप वाइप लगा के अरेंजमेंट करते हैं कि गैस रिलीज हो रहा है ये पता चले, या फिर आपको दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, आपको गैस वैस कलेक्ट नहीं करना है, तो आप सीधा वो बबल्स जो रिलीज हो रही है, जिस इलेक्ट्रोड के पास गैस रिलीज होगा ना, जिस इलेक्ट्रोड के पास गैस बनेगा, उस इलेक्ट्रोड के पास आपको क्या दिखाई देगा, बबल्स दिखाई देंगे, तो वो भी पता चल जाएगा कि गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये Yes. जो अब ये जो है इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट, इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड दिस इज ओनली वी हैव टू लर्न। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, वी आर प्लेसिंग अ डिपॉजिट ऑफ वन मेटल ऑन द अदर मेटल, okay, with the help of electrolysis. When we are placing a layer of one metal on the other metal with the help of electricity, it will be called as electroplating. Okay, electroplating जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ओके, आपका स्टेट आपका जो घर में जो इक्विपमेंट्स यूज करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है व्हाट इट इज इन द मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, डॉक्टर्स लोग जो सीजर और वो सब यूज करते हैं, आप देखना कुछ येलोइश टाइप के इक्विपमेंट सीजर वगैरह भी रहते हैं, वो गोल्ड प्लेटेड रहते हैं, है कि नहीं, तो उन्हें और निकल का भी प्लेटिंग रहता है मेडिकल इक्विपमेंट्स में। तो सबसे ज्यादा बेटर अभी जो एप्लीकेशन वो है मेडिकल फील्ड में और आपके डेली लाइफ में, जैसे किचन वगैरह हो गया, वहां पे आपका सबसे ज्यादा यूज है। मेडिकल इक्विपमेंट्स में क्यों यूज होता है, क्योंकि डेली ऑपरेशंस होते हैं और सब ब्लड वगैरह का काम रहता है कि नहीं, तो वो क्या होता है, वहां पे आपका रस्टिंग का चांसेस बढ़ जाता है, उस इक्विपमेंट का क्या बोलेंगे, खराब होने का चांसेस रहता है, इसीलिए हम उसमें निकल वगैरह की कोटिंग चढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है, व्हेन हाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज हैपनिंग। ओके, एंड वन सेकेंड ना, कि भाई बताने के लिए। व्हाट हैपन, ओके, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हाउ यू आर डूइंग, व्हेन वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग व्हाट वी आर यूजिंग, दिस इज अ जनरल, ये एक जनरल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे किया जाता है। ओके, तो जैसे आपको सपोज किसी का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी के ऊपर आपको दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ानी है। ओके, तो सपोज मैंने एक मेटल मैम ये एक तो आपने एक्सप्लेन कर दिया था। तो किसी ने बोला समझाओ, दैट्स व्हाई यस आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। ओके, यहाँ पे जैसे आपको जिस भी मेटल का, जिसके मेटल के ऊपर आपको कोटिंग चढ़ानी है, जैसे मैंने घर में एक वेसल ले लिया, मुझे एक चम्मच लेना है, मुझे उस चम्मच के ऊपर सिल्वर की कोटिंग चढ़ानी है, तो मेरा जो स्पून होगा, दैट मीन्स माय चम्मच और माय स्पून इज विल बी बिकमिंग व्हाट योर नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कैथोड। ओके, नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। और सपोज मुझे उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करानी है, तो वो कोटिंग, वो जो प्योर सिल्वर का मैं क्या लूंगी, एनोड लूंगी, दैट इज यह पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। और सिंस सिल्वर की कोटिंग चढ़ानी है, इसलिए मैं सिल्वर सॉल्ट सोल्यूशन लूंगी। तो इसका एक क्वेश्चन भी शायद अगर आपको याद हो, काहूट के समय मैंने लिया था, आप लोगों ने बोला था मैडम नहीं आया, तो मैंने उसमें पूछा भी था
कि अगर मुझे सिल्वर के स्पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग चढ़ानी है तो मैं मेरा जो सिल्वर है वो कैथोड का काम करेगा कि एनोड का काम करेगा, तो क्या काम करेगा वो एनोड का। तो वैसे ही अगर सपोज मुझे एक वेसल है उसके ऊपर अगर मुझे कॉपर की कोटिंग चढ़ानी है तो मेरा जो कॉपर है वो क्या काम करेगा, एनोड का कि कैथोड का? टेल मी एनीवन। Ma'am, what is your question? I am asking if I have to coat any device with copper, any utensil with copper. Okay. So what will be the copper? Copper will be acting as an anode or it will be acting as a cathode? Ma'am, cathode. मुझे किसकी कोटिंग चढ़ानी है? That's why there you are doing the mistake. Anyone else? Naman, can you answer? Ma'am, we have to means हमें मतलब कोटिंग क्या चीज की करनी है, कॉपर की? हमको हाँ कॉपर की करनी है। कोई भी एक यूटेंसिल के ऊपर मुझे कॉपर की कोटिंग करनी है तो मेरा जो कॉपर जो रहेगा वो मेरा कैथोड का काम करेगा कि एनोड का काम करेगा? एनोड। यस, एनोड। जिसकी भी आपको कोटिंग चढ़ानी है, अगर सिल्वर की कोटिंग चढ़ानी है तो सिल्वर एनोड का काम करेगा, अगर कॉपर की कोटिंग चढ़ानी है तो कॉपर एनोड का काम करेगा। तो जिस भी मेटल की कोटिंग आपको चढ़ानी है वो मेटल जो है वो एनोड का काम करेगा, और जो भी बर्तन हो गया या फिर स्ट्रिप हो गया जिसके ऊपर आप क्या बोलते हैं कोटिंग चढ़ा रहे हो वो आपका क्या होगा, कैथोड का काम करेगा। और जिस भी मेटल का आप अगर आप कोटिंग चढ़ा रहे हो उसी मेटल का आपको सॉल्ट सोल्यूशन लेना है। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पासेस, बैटरी के जरिए जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, जैसे कॉपर लिया गया, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया गया और ब्रास है, ब्रास के ऊपर हमको कॉपर की कोटिंग चढ़ानी है। तो क्या होगा, ये कॉपर और सोल्यूशन क्या मैम लिया गया? मैम यस कैन आई टेल दिस? यस टेल। Means you are telling that negative means negative ions will move to the positive and positive will move to the negative. यस That's why the coppers means if we are taking silver as cathode, so the means copper's negative ions will move to the सिल्वर वाई विल cathode. टेक कैथोड। Ma'am, because our copper is anode, na? Do you want to place a coating of copper on the means silver? Yes, ma'am. एक और चीज इसमें मेंशन नहीं किया गया लेकिन आपको याद रखना, ऐसे जब आप लेते हो ना तो ऐसे नहीं है कि एक लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर आप यू वांट टू प्लेस द कोटिंग ऑफ कॉपर, या यू कैन डू बिकॉज सिल्वर इज लेस। हाँ, जब भी आप कोटिंग करोगे इस बात का ध्यान रखना कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा रहे हो तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसी की कोटिंग चढ़ा पाओगे। लेस रिएक्टिव मेटल को अगर आप एनोड के फॉर्म में लोगे तो वो नहीं कर पाएगा, याद रखना इस बात को। ओके, क्लियर? अब हाँ, टेल मी अगेन व्हाट यू वर टेलिंग। Ma'am, so negative ions will move to the positive. So Yes. copper's negative ions will move to the silver's means positive ion, and silver's positive ions will move to the cathode's means copper's negative ion. ओके ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। तो शॉर्ट में तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा जैसे हमने क्या लिया, ब्रास लिया जो हमारा अभी किसका काम कर रहा है, कैथोड का, और ये जो कॉपर जो है प्योर कॉपर जो है वो हमारा एनोड का काम कर रहा है, एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, तो जैसे ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो कॉपर सल्फेट जो टूट जाएगा कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। कॉपर आयन जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है और सल्फेट आयन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो सिंस नेगेटिव जो सल्फेट आयन है उसको आप मूवमेंट दे सकते हो। देखो ये नेगेटिव को वाला जो है वो पर्पल कलर से रिप्रेजेंटेड है और वो कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहा है। और जितने भी पॉजिटिव है, जितने भी पॉजिटिव कॉपर आयंस है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस नेगेटिव टर्मिनल दैट इज कॉपर आयंस। तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा का पूरा जो ये आपका जो ब्रास है वो कॉपर से कोटेड हो जाएगा। इज इट क्लियर?
मैम This way, सिल्वर can't coat the copper ना. yes, वहां पे नहीं कर सकते आप, रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा या लेस रिएक्टिव मेटल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है आपका, हाँ, आउट ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रोड्स द कॉपर, हाँ, अब ये तो हो गया, ये बता दिया मैंने आपको। अब इसके ऊपर देखो, ये आपके इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स का आप है कॉपर की कोटिंग या निकल क्या बोलते हैं निकल वगैरह की कोटिंग की जाती है क्या इक्विपमेंट्स में, एग्जांपल है कि आपका ये डेली लाइफ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग चलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, Ma'am, हाँ, यस, ma'am, but you told that today we will play Kahoot पक्का in Wednesday. तो बेटा ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, मैं इसको इनकम्प्लीट कैसे छोड़ दूं। Okay. अब आपका कंफर्म है वेडनेसडे को ये काहूट होगा, इसी चैप्टर पे होगा, ठीक है, कंफर्म। लेकिन हाँ वो ऐसे Yes, नहीं है कि ma'am. यू आर एंटरिंग 5:30 ना, मैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई विल स्टॉप। ओके, सो लीव दैट। निकल जो है वो हमारी बॉडी के लिए जो रहेगा वो क्या बोलते हैं हार्मफुल रहता है, लेकिन उसकी कोटिंग मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर क्या रहता है, कोटिंग की जाती है निकल की, तो वो हमारी बॉडी के लिए जो वो हार्मफुल है। तो इसी के लिए हम लोग आजकल क्या यूज करते हैं, गोल्ड या प्लैटिनम की कोटिंग चढ़ा देते हैं, किसके ऊपर, निकल के ऊपर। ओके, इसलिए मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो येलोइश कलर के रहते हैं, देखा वो एक्चुअली या तो गोल्ड की कोटिंग चढ़ाई रहती है या प्लैटिनम की कोटिंग चढ़ाई रहेगी। ओके, और दूसरा चीज है किचन इक्विपमेंट्स में आपका ये किचन इक्विपमेंट हो गया, और आपका जो कार का जो हैंडल वगैरह रहता है जो शाइनी शाइनी दिखता है वो क्रोमियम का है। ओके, क्रोमियम का कोटिंग रहता है उसमें। ओके, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। और ज्वेलरी में तो आपको पता ही है आजकल, ज्वेलरी में आजकल क्या गोल्ड प्लेटेड वाला ज्वेलरी आता है, वो वेरियस टाइप का। ओके, तो वो क्या है, इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए होता है। टिन कैन्स होते हैं, टिन कैन के अंदर भी आपका टिन कैन होता है, टिन टिन बोलते हैं, वो होता क्या है। ओके, तो इसमें एक्चुअली आयरन का जो कैन रहता है उसके ऊपर टिन की कोटिंग चढ़ाई जाती है ताकि रस्टिंग ना हो। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डेली लाइफ। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। तो मेटल से आपको अगर ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, ये दिख रहा है आपको कंटेनर। ओके, ये एक बड़ा सा बाहर से ये जो बड़ा सा ब्लैक कलर दिख रहा है वो आपका कंटेनर है, स्टील का कंटेनर रहेगा। इसमें एक पैसेज दिया गया ये वाला जहां से एल्यूमिनियम निकल सकता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कार्बन का है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल भी कार्बन का है। पॉजिटिव टर्मिनल आप बोलोगे एक ही एलिमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव का काम कैसे कर सकता है, एक में आप प्योर कार्बन लो, एक में आप ग्रेफाइट फॉर्म ले लो। ओके, यस। कैन मेटल कोट नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऊपर किसमें कोट, नॉन मेटल से आप कोई मटेरियल बना सकते हो क्या बेटा, नॉन मेटल के ऊपर आप क्या बोलते हैं कोटिंग तो नहीं चढ़ा सकते आप, कि क्या मटेरियल बनाओगे, किसी मटेरियल के ऊपर ही कोटिंग बनाओगे ना, तो किस मटेरियल का, नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल रहते हैं, तो टूट ही जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो मिलता ही नहीं है, आप कोटिंग क्या चढ़ाओगे। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बन जो है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक कार्बन जो है वो आपका कैथोड का और एक कार्बन जो है नेगेटिव का, और इसमें आपने एल्यूमिनियम, हाँ यस, मैम व्हाट इज दैट एलुमिना प्लस क्रायोलाइट? क्रायोलाइट वो उसका सॉल्ट है, वो उसका नाम है Na3Al(F6), वो एक सॉल्ट है, ठीक है। क्रायोलाइट, एल्यूमिना, एल्यूमिना हम किसको बोलते हैं, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना हम किसको बोलते हैं, Al2O3, और क्रायोलाइट उसी का एक सॉल्ट है Na3Al(F6), सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एक Na3Al(F6) करके एक सॉल्ट है। तो हमने क्या, मैंने आपको क्या बोला, हाँ, तो हम किसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, जिस भी मेटल को आपको एक्सट्रैक्शन करना है या कोटिंग करना है उसी का सॉल्ट लेगा, इसलिए हमने एल्यूमिनियम भी लिया है और क्रायोलाइट भी है, ताकि एल्यूमिनियम का अमाउंट बढ़ जाए, क्योंकि हम ये ओर है, एक्चुअली ये दोनों क्या है, ओर है, तो हम ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो ये दोनों एक्चुअली क्या है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम ही है।
काम इसी का, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन करना है तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम का ही ओर लेना पड़ेगा। इसी ओर को हम इम्प्यूरिटीज हटाने के बाद क्या कर देंगे, इसको मेल्ट कर देंगे और मेल्टेड फॉर्म में हम इस चेम्बर में लेके आएंगे। जैसे ही आप इस चेम्बर में लेके आओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, तो एल्यूमिनियम जो है वो आपका बच जाएगा, और जो ऑक्साइड वगैरह जो सब्सिडरी मेटल्स है, ऑक्सीजन वगैरह है जो उसके साथ ऑक्साइड बना के जुड़े हुए थे, उन लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस बना के एनोड से बाहर निकल जाएंगे। तो दिस वे यू कैन डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। ओके, दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जैसे आपने अभी इलेक्ट्रोलाइसिस किया था ना, सेम वे यू कैन डू द प्यूरिफिकेशन आल्सो। जैसे आपने इम्प्योर कॉपर का रॉड लिया, एक आपने प्योर कॉपर का रॉड लिया। प्योर कॉपर जो है यहाँ पे ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर, और ये सिलेंड्रिकल जो है वो आपका इम्प्योर कॉपर है, और ये दो किससे हैं, ये आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे आपका इम्प्योर कॉपर जो है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और प्योर कॉपर जो है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, इम्प्योर कॉपर से कॉपर को हटाना है। तो क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो ये इम्प्योर कॉपर जो है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे कॉपर आयंस को लूज करता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कॉपर आयंस को लूज करेगा, और सिंस वो कॉपर आयंस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कौन से टर्मिनल के ऊपर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का काम कौन कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर वाला। तो धीरे धीरे इस इम्प्योर रॉड से पूरा का पूरा कॉपर निकल के इस पर्टिकुलर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और आखिरी में आपका जो भी इम्प्योरिटीज बचेगी वो यहाँ सेटल हो जाएगी बिलो द एनोड। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एनोड मड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोड मड। एनोड मड यानी एनोड की मिट्टी, और वो मिट्टी जो रहेगी दैट इज नॉट सॉइल, actually the impurities present in this anode, or sometimes this anode mud contains precious metals like gold and silver also, small amount में। ओके, क्लियर, समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीबॉडी? No, नो, ma'am. ओके। सो द प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड, तो हम अब सिर्फ हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट, किसी को तोड़ नहीं सकते, हम जोड़ भी सकते हैं, हम कोई नया कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे इस प्रोसेस में बहुत सारे गैस रिलीज होते हैं, तो हाँ, आप क्या बोलोगे, आप मैडम इससे कैसे बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ना, सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डाल के घोलोगे फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो उस प्रोसेस के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो सिर्फ स्प्लिटिंग करके गैस रिलीज करने का काम नहीं करता। वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका कंपाउंड्स भी जनरेट होते हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड लिखा है, इट इज एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, स्पेलिंग गलत लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो वाटर का डिकम्पोजिशन भी करा सकते हैं। जैसे ये वाटर लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो वाटर जो है वो H+ और OH- आयन में टूटेगा। तो H+ जो है वो सिंस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो कौन से टर्मिनल में जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि आपका कैथोड। कैथोड के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, H2 गैस। और आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड के ऊपर जाएगा। इसलिए एनोड के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन गैस दिख रहा है। तो ये जो है मैं आपको इतना डिटेलिंग में क्यों बता रही है सब, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अगर MCQ में आएंगे, अभी तो इजी आया था, है ना, लेकिन अब आपको डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना है। हु इज दैट? Ma'am, background noise. प्लीज स्लो डाउन दैट, या फिर आप उसको, अब यहाँ पे देखो, यार मैं आपको MCQ है, एक एक MCQ, हाँ बोलो बेटा। Ma'am, this chapter's notes prints are given us chapter 4 only. कहाँ पे कितना दिए हैं? मैम जो मतलब पिंसर, केमिकल इफेक्ट जो आपने डायग्राम दिखाया ना, मींस प्योर कॉपर, तो फिर सर ने उससे चैप्टर 4 के नोट्स में ही करा दिया था। कर दिए हैं कैन आई नोट्स? शो यू? हाँ, नोट्स मिल गया आपको या नहीं?
नो मैम, मीन्स वो केमिकल इफेक्ट का नोट्स नहीं है, चैप्टर 4 के नोट्स में ही दिया है सर ने उसे। अच्छा, पूरा दे मिल गया है आप बोल रहे हो, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमारे पास है ऑलरेडी बोल रहे हो, चैप्टर 4 के अंडर में। शो यू मैम। ठीक चलेगा ना, नो इश्यूज, नो इश्यूज, आप दे सकते हो। आपको मैं मटेरियल दे दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आपको जिसपे से इजी लग रहा है, सेम मटेरियल ही तो दिए होंगे ना सर ने भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आपको बस मेरे को आपका टॉपिक से स्टडी करने से मतलब है, और कुछ नहीं। ओके, so let's see, MCQ कर लेते हैं। Which of the following is a bad conductor of electricity? Who will tell? Ma'am, can I? Yes, Sulfuric acid. bad conductor. Yes. Rajat, tell. Copper sulfate. Ma'am, can I? Yes. Ma'am, copper sulfate. बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है? Ma'am, copper sulfate. You people are not noting the Ma'am, important point. distilled water. Distilled मैम water. डिस्टिल्ड वाटर। Distilled water. गलती कर रहे हो ऐसी। Which of the following does not conduct electricity here? Ma'am, can I? Yes. Ma'am, can Ma'am, I? option A, distilled D. water. Caustic soda. मैम Distilled विनेगर water. Yes, सॉल्यूशन। yes, yes. Okay. Second one. मैम सेकंड Caustic विनेगर soda सॉल्यूशन। solution. Second D. Vinegar solution. मैम Vinegar. विनेगर सॉल्यूशन। Caustic soda. Okay. Gunjan, what you are telling? Vinegar solution. Vinegar. Bhumika? Bhumika? Bhumika, tell. Ma'am, can I tell? Yes, ma'am. Tell. Second का आंसर Ma'am, can बताइए। I tell? Does not conduct electricity. Ma'am, I'm telling. Yes, tell. Soda. Sugar Caustic solution. soda. Caustic soda. Soda, Ma'am, soda. caustic soda. Soda. Caustic soda, it is not. आप लोग इतना important point कैसे भूल जाते हैं? solution. विनेगर एक एसिटिक एसिड है ना, विनेगर आपको एसिड बेस चैप्टर में था ना। Yes, yes, ma'am. Ma'am, sugar solution. शुगर सोल्यूशन इज द करेक्ट वन, क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, Clap. वो आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ दीज और एनी ऑफ दीज थ्री। Yes, Ma'am, Ajay. all of these. All of these. यस, करेक्ट, गुड। All of these. All of these. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड All ऑन of व्हाट? these. Heating मैम effect केमिकल of इफेक्ट ऑफ electricity. इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल इफेक्ट, एंड somebody is saying heating effect. कौन क्या बोल रहा है? अरहान, व्हाट यू आर टेलिंग? Ma'am, all of these. All of this electroplating. How electroplating is based on all of these? Ma'am, वो question 3 का बताया. Electroplating is based on what? केमिकल। Chemical effect of electricity. Chemical effects of electricity. And electrolyte is what? A metal. A metal. Yes, ma'am, it's a metal. वो एक metal है? Ma'am, मैं बताया. मैम लिक्विड Liquid that conducts current. Yes, correct. Now, the liquid that conducts current, which is not a non-electrolyte. मतलब एक Ma'am, can I tell? हाँ, tell, Urea, tell. urea, Ma'am, urea. Yeah. Urea. 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 Okay. Urea. Okay. In Urea. LEDs, the longer lead wire is connected to Ma'am, any Neutral. terminal. any Ma'am, terminal. Any terminal. Yes, any terminal. Neutral. No, ma'am. No, ma'am, neutral. No, Any terminal. Ma'am, positive. positive terminal. Positive. लॉन्गर जो रहेगा वो पॉजिटिव में कनेक्टेड रहता है, लॉन्गर टर्मिनल नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो पॉजिटिव में कनेक्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट। Yes, ma'am. When an Ma'am, electrode, positive. yes, when electrodes are immersed in water, bubbles formed on the positive terminal is actually which gas? Oxygen. Oxygen. बेटा अभी Oxygen. तो बताई हूँ, हाइड्रोजन क्या रहता है? Oxygen. Ma'am, जो oxygen, ma'am, oxygen is produced. O2. ओके, करेक्ट, Yes, गुड। ma'am, oxygen. From H2O, O2 is produced and H is, ma'am, it is other side. ओके, गुड। अच्छा. When electrodes are immersed in water, electricity passes. Hydrogen. Hydrogen. Yes, correct, good. Why do we add little dilute sulfuric acid to copper sulfate?
Ma'am, to increase. To increase. Ma'am, so that to increase conduct. To increase ma'am, to burn copper sulfate. No, To to burn. increase conductivity. एसिड का कंडक्टिंग पावर ज्यादा रहता है, इसलिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आप इस चैप्टर का नहीं ओके खत्म. मैम, बाय. मैम हाँ, Okay, मैम ma'am. 21 सेक्शन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और